webinar is on the future of solar industry, particularly about the solar rooftops industry. Because as you know, we are all small developers, small and medium developers. So we have this platform will basically give you what is the idea of solar rooftop in future after post COVID 2019. Kindly note for all participants will be muted for at the time of joining webinar. Please use your headphones or headsets for better clarity. If any participants wants to ask the question, kindly put the questions in the chat box. We'll try to answer them. We have received so many questions, so we have shortlisted some of the questions, and they are being forwarded to the panelists, and will be shortlisted to the panelists, and we'll try to answer all. This is the agenda of today's meeting. My name is Prasanna Sutavane. I'll be giving the introduction of Mahasolar Sangatan in a brief. Welcome address will be given by Mr. Rajashekharan, who is President of Mahasolar Sangatan. We have been graced by two dignitaries, Sri Vikas Rode, GM Solar Pune, MEDA, and Sri Sarang Mahajan, DGM, Divisional General Manager, Nagpur, who is heading the activities at Nagpur for MEDA. And the vote of thanks and future vision of Mahasolar Sangatan will be given by Mr. Shamal Chatterjee, Secretary of Mahasolar Sangatan. So let us start the today's meeting. Basically, what we are likely to tell you that fortunately we are in a good sector. As you see, with this effect of this industrial effect of COVID-19 on industrial sector, you'll see that retail, travel, tourism, cinema, hospitality, local transportation, restaurants, many luxury product companies, live sports, real estates, oil and gas, and event and conferences. These are the sectors which are going to be affected many more with this COVID-19. The life after COVID-19 might change in this industries. And the industries which we are going to have a heavy weight will be digital products like what we are using this webinar platform. The stock market, the home gardening will flourish, online coaching will start, the mental health techniques will start, renewable energy. The most important thing is renewable energy. This sector is going to boom. You must remember in 2009 when there was a recession, that time also renewable energy sector was booming. And with the supportive government policies, definitely we are in a good sector. Insurance is another sector which is going to be booming. Alternate medicines, gaming industry, healthcare, network marketing. The marketing things are going to be changed, which will be not actual, will not be going meeting actual clients. It might be through the webinars or something like that. The data sciences and spiritual sciences sector will be booming up. So what are the change stimulus will be observing after this COVID? Change in the social interaction, social distancing, and all those things will be coming up. Working style will be there will be a change in our working style. Internet uses, it will increase our internet uses. The pollution, definitely with the reduction of all these things, the pollution will be reduced. Change in business models. The business models are going to be changed. Whatever we are using, the models what we are using earlier, we have to change the business models. Expenses will be dropped. This is a good sign. Education, all education maybe somewhat will be coming on to the online platform. Entertainment industry is going to change very much because the OTT platforms have come and they are flourishing like anything. So I'll just tell you about our Sangatan. We are Mahasolar Sangatan, which bring together experience of more than 150 years in various fields, including renewable energy. The legal setup of MSS is registered as an NGO under the Charity Commissioner Nagpur and poised to work for benefits of small and medium solar project developers. इसमें ऐसा है कि हम लोग इतने स्कैटर्ड और स्मॉल मीडियम सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स है कि हम लोग को कुछ पॉलिसी फ्रंट पे प्रॉब्लम होता है या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अकेले कुछ कर नहीं पाते. तो महासोलर संगठन इज गोइंग टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू रेज योर वॉइस, to give basically not to exactly raise your voice but give you a platform to
to let the policy makers heard your opinion, and they can take out some of the things out of it. The another thing which we want to tell you is we are basically giving a solution to the policy makers, not always raising the complaints. Giving the solution will give you the positive vibe to the policy makers also, and will strengthen our organization. So this is the MSS journey. The journey was started by Mr. Rajesh Shekharan by creating a platform for all solar developers in Vidarbha. We have founded MSS on 28 to 2018. Earlier it was in the name of Vidarbha Solar Group. Now the mission to unite small and medium solar developer oblique entrepreneurs on a common platform, and to represent them in regulatory and government bodies for ease of doing business and growing more opportunities of employment. There is another milestone on 7th of August 2018. MSCDCL has started opposing solar rooftop industry by a petition stating that solar rooftop industry is creating losses for them, and started pressurizing the regulatory body. There another thing is on 7th March 2019, MSCDCL again filed a petition for implementing gross metering in the state, which was put aside by the commission for starting a public consultation process. इन सब चीजों में एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में है, जो रिन्यूएबल एनर्जी इज अ पॉलिसी ड्रिवन बिजनेस. ये जो पूरा हमारा बिजनेस है वो पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है. इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कंडक्टिव, we can do good business. If government policies are non-conductive, our business is going to hamper. So always a policy conduction is required in our type of business. This is the journey of MSS. So MSS has formed a core team of technical and legal experts to start a strong fight against unlawful draft floated by the MERC in favor of DISCOM. We have empaneled Advocate Raj Niranjan of TILA, New Delhi, to oppose this draft policy on the ground of Electricity Act 2003, which says every individual has a right to generate power for his own consumption. The draft was opposed by Mahasolar Sangathan on legal grounds. Basically, the legal grounds are very much required because all other means are not good. The MSS has taken the issue at the political ground also, and was well supported by the leaders. As you can see, we met Sri R.K. Singh, Union Power Minister, Sri Nitin Gadkari, then the Advocate Raj Niranjan, and everybody has supported because we are into the renewable energy sector. This sector doesn't affect any environment. So everybody has given a positive vibe to our industry, and everybody has supported our industry. The journey of MSS has started again. The MSS has opposed the draft, and MERC has asked MSCDCL to represent the case in MYT 2020. This MYT was published for public consultation on 15th of Jan 2020, and MERC has proposed to hold a public consultation process at various cities in Maharashtra. This public consultation process, we have empaneled Advocate Aditya Singh of HSA Associate Delhi to represent the matter at public consultation at Amravati. Advocate Aditya Singh is also present here. He'll be speaking for 2 minutes on this particular subject. He has basically represent the complete industry and told about what are the hindrances in the policy, what is going to come. The MSS technical and legal team has put a strong battle at MERC consultation process at Nagpur and Amravati. This consultation, MSS has put forward solutions and not complaints. Please give the more thoughts on this, because we are not complaint makers. We have to forward the solutions by assuming the implementation challenges also. So we have shown a green light on what will be the implementation challenges, and we have given the solutions to the in the consultation panel, and MSS has given the win-win solutions for DISCOM as well as consumer. In this complete process, we are very happy to tell you that MERC has appreciated our stand, applauded our representatives personally from the dais of the regulatory members. So this is about the journey of MSS.
Today, this organization is a very strong organization and is poised to become a leader in the renewable energy, basically for solar rooftop right now. And we will be conducting number of seminars, technical seminars in future also. In future also. Okay. I'll ask Raja sir to kindly welcome our dignitaries and tell two words about it. Thank you, Prasanna. Namaste. Namaste, everyone. You are all now. COVID has taught us many things. Namaste being one. On behalf of MSS, I welcome you to this August gathering, Mr. Vikas Dhode and Mr. Sanjay Maharaj, very senior officials of MEDA. I request you to give a loud applause. Thank you, that was not for our key speakers of the day, but it was for you. More than that, more than a month has passed, and we have all been struggling with COVID. And after this COVID, I think we need new energy, new associations to start by. So today we have solar integrators, manufacturers, and most of solar people in the industry among this 190, 200 people. And in this session, I strongly believe, Vikasji and Nanji, what we are going to take back is hope and enthusiasm. With these words, I welcome you once again and request Prasanna to proceed with the session. Thank you. Yeah. So now our main presentation of today. This is our speaker profile. We'll be joining by Sri Vikas Dhode, who is General Manager at MEDA Pune. He has joined MEDA as a project officer in 1989. He is a continuous learner and has participated in various trainings on renewable energy throughout his journey. One of the key members of MEDA team, which put Maharashtra among the top state of renewable map of country. We at Mahasolar Sangathan look forward to put Maharashtra at number one position in rooftop sector in this country for its positive support. Hello. As computer. हेलो हेलो रोडे सर आप बोल सकते हैं अभी सब लोग आपको सुन रहे हैं प्लीज स्पीक हेलो हेलो हाँ रोडे सर आप ऑडिएबल है प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर हेलो
So we'll ask Sarang sir to get it first, then we'll ask Rode sir. There is some technical difficulties with Rode sir, so we'll ask Sarang Mahajan sir to join us, and then we'll come to Rode sir. As you know, Sarang Mahajan sir, he is one of the pioneers in solar industry in MEDA at Nagpur. He is a divisional general manager at Nagpur. He joined MSCDCL in 2003 and was working as executive engineer. He joined MEDA in आगे के थोड़े सा. He joined MEDA in 2016 and he spearheaded activities of MEDA in Nagpur region. We at MSS look forward to put Maharashtra at #1 position in solar rooftop sector. And Mr. Sarang Mahajan is one of the key members in MEDA in implementing various schemes in renewable sector. Mahajan sir, please unmute your audio. We can hear you. आता आवाज येतोय? हॅलो, आवाज येतो का माझा? हॅलो. Sarang sir, you are audible completely. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Good morning, friends. Good morning. So we are here for the session of after COVID. What is going to happen and what new technologies will be introduced in MEDA and what policies or what kind of framework will be there in future. So आज के तो डेट में ऐसा है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे या जो भी हमारा काम चल रहा था वो सब अभी आज के इसमें आपको पता ही है कि किस स्टेज में हम लोग हैं. तो बेसिकली आगे का जो फ्यूचर होने वाला है वो तो टेक्नोलॉजी बेस ही होने वाला है. आज के डेट में हम लोग जो काम कर रहे थे वो फिजिकली मैक्सिमम जाके कर रहे थे. हो सकता है अगले 1-2 साल में प्रॉपर फिजिकल लोकेशन वाइज काम करना या फिर हमें शायद ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जहां से हमको रिमोट एक्सेस ज्यादा से ज्यादा करना पड़े. हमें ज्यादा से ज्यादा एट होम या फिर ऐसे लोकेशन से काम करना पड़े कि कस्टमर को हम कम से कम इसमें रहे, कांटेक्ट में रहे या कम से कम उसको फैसिलिटीज ऐसी देनी होगी कि जिसमें उसके यहाँ जाने का काम ना पड़े. तो बेसिकली आई वांट टू से ऑन टेक्नोलॉजी बेसिकली कि आज तक हम लोग जो मटेरियल यूज करते आए हैं, ये जो सिस्टम यूज करते आए हैं वो ऐसी कंट्री का यूज कर रहे थे जहाँ का हम ऑलवेज उसका मजाक उड़ाते थे कि हाँ ये मटेरियल ऐसा है, ये मटेरियल ऐसा. तो जो गवर्नमेंट का व्यू दिख रहा है आज की डेट में वो ऐसे है कि यूरोपियन कंट्रीज का जो मटेरियल है या यूरोपियन कंट्रीज से जो सिस्टम है वो लेके आओ, क्योंकि जो कंट्रीज इंडिया फ्रेंडली है, जो कंट्रीज इंडिया को सपोर्टिंग है, ऐसे ही कंट्रीज का मटेरियल यूज करो या ऐसे ही कंट्रीज से टेक्नोलॉजी यूज करो. ये एक बेसिक थीम या बेसिक कंसेप्ट आज के डेट में होते जा रहा है. एंड हेलो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, you are audible, sir. ओके. Please continue. मला थोडासा आवाज आला नाही म्हणून. ओके.
तो बेसिकली अभी तक के जो हम सिस्टम लगाते थे वो एकदम सिंपल बेसिस पे जो अपन करते थे कि हाँ एमएनआर की गाइडलाइंस के हिसाब से 5 साल की वारंटी के साथ या फिर सोलर सिस्टम विद ये बैटरी बैकअप भी देते थे कई जगह पे। तो अभी जो पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, अभी जो सोलर इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें रूट लेवल मॉनिटरिंग के साथ, पैनल लेवल मॉनिटरिंग के साथ बेसिकली ऑल इन वन सिस्टम देना। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिस पे जो काम चल रहा है, उनकी पॉलिसी में काफी चेंजेस अभी आने वाले हैं। एक आध महीने में वो पॉलिसी आ जाएगी जिसमें वो ऑल इन वन बैटरी वाला जो सिस्टम है उसको प्रमोट करने जा रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम को प्रमोट करने जा रहे हैं, पैनल लेवल मॉनिटरिंग, स्ट्रिंग लेवल मॉनिटरिंग, यहाँ तक के वो लोग जा रहे हैं। बिकॉज कि जो और रिमोट एक्सेस से जो भी काम हमारा होगा, जो भी हमारे फॉल्ट्स आते हैं, जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स है, ये सारी चीजों पे अभी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होते जा रही है। अभी तक के ऐसा था कि हमारा सिस्टम, आपको भी पता है जो काम करते हो आप लोग, तो कैसे किस थोड़ा सा क्या क्या चीजें होती है। बट अभी जो होने वाला है वो ऐसा है कि सारी चीजों को रिमोट एक्सेस मॉनिटरिंग के साथ, इवन आपके फॉल्ट फाइंडिंग्स जो है या फॉल्ट का जो भी लोकेशंस होगा उसके उसको फॉल्ट समझना एंड उसको मॉनिटर करना, ये सारी चीजें जितना रिमोटली हो सके उसके ऊपर जा रही गवर्नमेंट। एंड जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने वाला है वो ऐसा है कि जिसमें जो हमारे क्या कहते हैं उसको, डीसी ऑप्टिमाइजर्स जो बोलते थे अपन, जो हम लोगों ने कई जगह पे यूज भी किया, 2-3 जगह पे। तो डीसी ऑप्टिमाइजर्स एक आने वाला है इसमें, जो पॉलिसी में आने वाला है। तो वो एक आप लोगों को उसके बारे में एक ध्यान देना होगा। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे लिए जो अभी काम करने का सिचुएशन है वो हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, जो बेटर से बेटर मटेरियल यूज करेंगे, और जो टेक्नोलॉजी यूज करना है वो ऐसी हो जो हमारे पास कम से कम हम लोग कंज्यूमर के पास जा सके। ये हमारा एक ये होगा हाइब्रिड सिस्टम का। ऑल इन वन सिस्टम की पॉलिसी बहुत जल्दी गवर्नमेंट लाने वाली है, जिसमें ये ऑल इन वन सिस्टम जो हमारी होगी वो लिथियम आयन बैटरीज के साथ HVLV इंडस्ट्रियल ग्रेड बैटरीज होनी चाहिए, जिसमें हायर डिस्चार्ज साइकिल हो। ये सारी चीजों का अभी ध्यान रखना होगा। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट की वर्किंग चल रही है अभी, उसमें सारी गवर्नमेंट ऑफिसेस को या मैक्सिमम यहाँ पे जो सोलर सिस्टम लगानी है उसके लिए हाइब्रिड को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो पॉलिसी बहुत जल्दी आने वाली है। एक एक कंसेप्ट और डेवलप हुआ है स्मार्ट मीटरिंग का। उनका ये सो बोलना है कि हमें बहुत सारे लोग, आप लोग सिस्टम लगाते हो, हर जगह लोगों का एक ही इशू आता है कि भाई हमारा तो ग्रिड में गया ही नहीं बिजली, हमने यूज ही नहीं किया, हमारा बिल ज्यादा आ गया, ऐसा वैसा। तो एक स्मार्ट मीटरिंग का जो कंसेप्ट है वो एक इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाओ, जो 20 किलोवाट के ऊपर की सिस्टम है उसमें स्मार्ट मीटर्स लगाओ, सो दैट कितना बिजली तैयार हुई, कितना यूज की, कौन से जोन में कितना यूज किया, कितना ग्रिड को किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा का हिसाब हो सके, और एक उसका स्मार्टली एक मेल या बोलो या फिर हम लोग उसको डिजिटली उसको डाउनलोड करके कंज्यूमर को दिखा सके। आज के डेट में ऐसा है कि हम टोटली डिपेंडेंट है MSEDCL के ऊपर। वहां पे भी वो मीटर्स मतलब हमें एग्जैक्टली वो देते नहीं है कि कितना कौन से जोन में कितना गया, कब गया। ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए, कमर्शियल कंज्यूमर के लिए, या जो भी सिटी ऑपरेटेड कंज्यूमर्स है जहाँ पे जोन वाइज बिलिंग होती है, वहां पे ये दिक्कत जाती है। तो ये जो स्मार्ट मीटर्स है वो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं कि जिसको लगाना कंपलसरी करने वाले हैं। तो ऐसी चीजें जो अभी टेक्नोलॉजी वाइज आगे जाके बढ़ने वाला है, वो ये काम टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है। आप लोगों को कोई सवाल हो या कोई 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 चीजों के बारे में पूछना हो तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा बोलना। हेलो।
हाँ एक हाँ, मिनट एक मिनट सर, सर, आवाज आ रही आवाज आ है रही अभी? है अभी? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ आवाज आ रही रही है है सर? सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मी आई सर, सेड कि किस हाँ हाँ, इसमें सर इसमें कुछ सर कुछ रोडे क्वेश्चंस कुछ एनी क्वेश्चन क्वेश्चंस क्वेश्चन या हमारे एनीथिंग, आपके कोई डाउट्स या कुछ पूछना हो तो वो पूछिए, सो दैट आई कैन आंसर देम। मतलब मुझे भी बोल, मतलब आपकी क्या डाउट्स है या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा एक बार ये हो जाए। हाँ ठीक है सर, हाँ, ये ठीक है इसमें सर, ये इसमें द हाइब्रिड फ्यूचर ऑफ सोलर, हाइब्रिड सोलर सिस्टम इन इंडिया। हाँ, हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ऑल इन वन सिस्टम के बारे में एक पॉलिसी अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर करने जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाइब्रिड सिस्टम के बारे में आज तक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी, एक तो अपग्रेड की थी या ग्रिड कनेक्टेड की पॉलिसी थी। तो अभी जो पॉलिसी बन रही है वो हाइब्रिड की बन रही है। मैक्सिमम वर्क आज के बाद जो होने वाले हैं वो हाइब्रिड सिस्टम में ही होने वाले हैं। ओके ओके सर। सर। सर एक सर, बहुत एक बड़ा बहुत बड़ा वो सवाल एक सवाल सबका है, आता है, व्हाट इज व्हाट द इज द सब्सिडी सब्सिडी फ्यूचर? फ्यूचर? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी, विल इट बी विल बी देयर और देयर इट और विल इट बी विल नॉट बी नॉट देयर? सब्सिडी के बारे में आपको रोडे सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ठीक है ठीक है सर। सर। एनी एनी अदर अदर अपकमिंग upcoming थीम theme पॉइंट point प्रोजेक्ट इन project in सोलर solar पंपिंग pumping सिस्टम? system? Solar pumping, basically government is trying to do the all the villages in solar pumping. Solar pumping में grid connected solar pumps ये एक अभी उसमें ऐड होने वाला है। अगर वो ऐड हो गया तो उसके बाद में काफी सारी चेंजेस आ जाएंगे इस पॉलिसी में। अभी वो पॉलिसी बेस पे चल रहा है महाराष्ट्र में भी। अभी उसकी शायद रोड सर ने कोई नई पॉलिसी बनाई है, वो बताएंगे आपको उसके बारे में। Okay, sir. So basically, you are saying the roadmap of government of Maharashtra is Is they are ready now. flowing towards हाँ, hybrid. गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाइब्रिड की तरफ जा रहा है। Okay, okay. About Maharashtra, हेलो, हेलो, sir, what about Yes, the Hello. solar Hello. industry in Maharashtra? Hello. हाँ यस, हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए। सोलर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, मैंने आपको जो बोला ना, बेसिकली अभी तक के क्या हम लोग चाइना से मटेरियल ले रहे थे एंड काम कर रहे थे। बाकी आपको भी सच पता है क्या नहीं है। बट अभी जो डायरेक्टिव्स है, जैसे भी है कि गो फॉर इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज। ओके। तो वो जल्दी ही पॉलिसी में आएगा या जल्दी ही उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन होंगे। बट इंडिया फ्रेंडली कंट्री से, इंडिया फ्रेंडली जगह से चीजों को मटेरियलाइज करो, ये एक थीम है बेसिकली। ओके। Any financial assistance policies are coming in, sir? इट इज ऑन द वे। एक्चुअली वो पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है अभी आज के डेट में। मेरे ख्याल से रोडे सर कल के डेट में, कल ही शायद उसके लिए गए थे, तो वो बताएंगे आपको। पॉलिसी का काम चालू है फिलहाल, नई पॉलिसी बनाने का स्टेट लेवल पे। ठीक है sir. Anything else you want to add to this? Because I think the questions are more related to subsidy, so which will be giving to the Rode sir. रोडे सर Yes. विल गिव यू द बेसिक आंसर फॉर द सब्सिडी। Yes, sir. महाजन सर, हाँ यस, सर एक क्वेश्चन या पूछना था बोलिए। आपसे। जी, हाँ जी, जो ये आपने स्मार्ट मीटर का बताया, सो द 25 करोड़ मीटर्स गवर्नमेंट चेंज कर रही है इन स्मार्ट मीटर्स, मे बी इन कपल ऑफ इयर्स, जो अभी नेक्स्ट यस यस, रिफॉर्म आ रहा है।
तो वी वांट टू आस्क कि वो मीटर नेट मीटरिंग कैपेबल ही होंगे क्या, या मतलब उसके बाद कभी नेट मीटर दूसरा लगाना ही नहीं पड़ेगा, सो दैट नेट मीटर लगाना एक हिस्ट्री बन जाए? शायद ऐसा ना हो, बिकॉज MSCDCL के कुछ खुद के कंसर्न है. मीटर इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बट इनके कंसर्न कुछ अलग है, तो मे बी ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हो. बट सर, अगर आपने इस तरह से हेल्प किया तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एवेन्यू हो जाएगा. मे बी वो सॉफ्टवेयर से लॉक करके रखे, वंस टेक्निकल फिजिकल. हेलो. हाँ सर. सर इसमें एक और क्वेश्चन था जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसा आप टेंडर में ये करते हैं, जब फ्रेमवर्क करते हैं, you should consider the dollar price also, because nowadays dollar prices are very fluctuating and tender takes much more time. Hello. So that is one of the suggestions, sir. Rode sir, please continue. सजेशन इज गुड. सजेशन अच्छा है. सुन रहे हो मेरे को आज? हाँ सुन आप रहे लोग सर. सुन रहे हैं ना? लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू. क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर. थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार. मैं वीडियो पे तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ऑडियो पे आप सुन रहे हो मुझे? हेलो. हाँ, यस सर, Hello. लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज कंटिन्यू, वेरी लाउड एंड क्लियर सर. ओके ओके. तो बात ऐसी है कि आपने अभी बताया कि डॉलर्स में उसका कंसिडरेशन करना चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो है गवर्नमेंट से रेजुलेशन उसका निकालना पड़ेगा कि हम लोग अगर डॉलर में उसको कंसिडरेशन करना है, या टेंडर में डॉलर का अगर कुछ ये करना है, उसका कंपैरिजन करना है, तो वहाँ वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टिव्स आना चाहिए. अभी वो डायरेक्टिव्स कहाँ आएंगे, कब आएंगे, ये हम तो नहीं बता सकते. उसके लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं, लेकिन जनरली कैसा है कि रूपी में किया तो अगर बाहर का कोई उसमें टेंडर करे तो उसका डॉलर का पैसा इधर आ जाएगा. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें उसका परमिशन लेना पड़ेगा कि डॉलर कंपैरिजन उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इट इज अ पॉलिसी मैटर, राइट? Okay sir. Okay sir. एनीथिंग Sir, you एल्स? please, what we'll do is, sir, you please continue with your 5 minutes of speech regarding the future of solar industry after COVID-19, and then we'll take a question answers. We have received some questions. समझ गया मैं. आप एक एक क्वेश्चन पूछिए. अभी आपने जो बताया ना कि कोविड-19 के बाद में सोलर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, Yes, यही yes, आपका क्वेश्चन है ना? yes, sir. देखो ऐसा है कि कोविड-19 के बाद में सोलर इंडस्ट्री ये जो है कि हिंदुस्तान में मतलब इंडिया में सोलर इंडस्ट्री तो बहुत छोटा पार्ट है. एंड ये जो है कि जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी पार्ट है नहीं अभी. एज ए नेशन सोलर इंडस्ट्री या सोलर को बढ़ावा देना आज का प्रायोरिटी पार्ट नहीं है. प्रायोरिटी पार्ट देश के लिए दूसरे बहुत सारे हैं, ठीक है. लेकिन ऐसा है कि जो दूसरे इंडस्ट्री का होगा वैसा थोड़ा टेन्योर हार्ड जाएगा, प्रॉब्लमेटिक जाएगा. लेकिन आई थिंक जहां तक मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, सोलर इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं. Correct, sir. यस, बहुत अच्छे दिन आएंगे. लेकिन आप लोग कहाँ तक उसमें आगे जा सकते हो, कंपटीशन में जा सकते हो, ये मेन चीज है. पैसे का वैसा हिंदुस्तान या इंडिया के टोटल बजट के हिसाब से सोलर इंडस्ट्री का बजट इट इज अ वेरी निग्लिजिबल, बहुत निग्लिजिबल है. लेकिन वो निग्लिजिबल बजट भी हमको मिल गया, फिर भी हमारी सोलर इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चल सकती है.
क्योंकि हम बहुत बहुत कम लोग हैं कंपेरेटिवली अदर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री इज अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, और उसमें से स्मॉल पोर्शन भी हमें मिल गया उनके बजट में से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, या अदर एनी बजट हो, तो सोलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। फिलहाल आने वाले मतलब जून से लेकर नेक्स्ट मार्च तक थोड़ा स्लो डाउन रहेगा ऑन। तो ना सब लोग, हाँ ठीक है, सुन रहे सर, सुन रहे। हेलो, हाँ ये तो सर है ना? हाँ आप मुझे डिस्टर्ब भी कर सकते हो। हाँ, आप मुझे नहीं, ठीक है, डिस्टर्ब भी कर सकते हो अगर कुछ मैं गलत जा रहा हूं तो। हाँ, ठीक है। तो ऐसा है कि आने वाले मार्च तक, मतलब ये अभी 13 तक 16 तक हुआ है लॉकडाउन, उससे आगे शायद जून तक जाए पॉसिबली, सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लेकिन अगर अगर ऐसा भी चला जून के बाद में आने वाले मार्च तक, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मेरे, आज मेरे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एज ए मेरा एचओ पुणे, वो भी 300-400 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राइट? जो बैलेंस है, जो अभी इंस्टॉल होना है, ठीक है ना, तो वो तो चलते रहेगा, क्योंकि उसमें भी अराउंड 20% इंडस्ट्री आपकी उसमें भी इन्वॉल्व है। 100% नहीं है, लेकिन 50% लोगों ने तो काम ले चुके हैं, तो वो तो चलेगा। दूसरा, MSCDCL भी काम कर रहा है उसमें, जो छोटे प्रोजेक्ट है उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, सोलर पार्क भी आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली कोई बात है नहीं, कोई इंडस्ट्री ने घबराने की जरूरत है नहीं उसमें। और हम लोग आपके आपके इसके लिए बोलते हैं, आपको करेज देने के लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं। लेकिन मैं मेरे हर मीटिंग में, हर भाषण में ये बोलता हूँ कि हम जो पॉलिसी हम लोग लाते हैं उसका आप सही इस्तेमाल नहीं करते हो। आज भी मेरा वही ब्लेम है, कल भी वही रहेगा, क्योंकि आप लोग है ना, तो अगर एक टेक्नोलॉजी है उसके पीछे जो दौड़ते हो, एक टेक्नोलॉजी के पीछे जो छूटते हो, अब तो दूसरा कुछ आपको दिखता ही नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो 2-3 साल पहले रूफटॉप आया, ठीक है? बराबर। रूफटॉप 3 साल पहले आया, 17-18 में आया, जो फर्स्ट टारगेट आया हमको। 16-17 में बहुत कम हुआ था, 17-18 में फर्स्ट टारगेट आया 100 मेगावाट का साहब। बराबर। उस टाइम हमारी कैपेसिटी 100 मेगावाट नहीं थी, लेकिन अवेयरनेस नहीं था, ठीक है? बराबर। तो लोगों ने पूरे बाकी सब धंधे बंद कर दिए, इंडस्ट्री ने पूरे धंधे बंद हो गए। टोटली इंडस्ट्री रूफटॉप के पीछे भागी, बस उनको रोड़े मेड़ा, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, इट्स अ फैक्ट। ये मैं एग्जांपल इसके लिए बोल कि इट इज माय एक्सपीरियंस कि लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, बस रूफटॉप। साल इतना पूरा महाराष्ट्र की इंडस्ट्री भाग के कितना बनाया? 55 मेगावाट। अरे हमारी 5500 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी, हमने 55 मेगावाट बनाया, तो हम कहाँ पीछे रह गए? ये किसी ने सोचा नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर आया टारगेट, फिर भागे। अरे ये तो मेरा मतलब मैंने एक 100 मेगावाट किया, 100 मेगावाट से लेकर समझो 20,000 रुपये पर किलोवाट भी पकड़ा, तो कितना बिजनेस हुआ? 200-500 करोड़ का बिजनेस हुआ। लेकिन उस सिमिलरली हम लोगों ने उससे तिगुना बिजनेस बाहर जो था उसको मिस कर दिया। क्यों किया ऐसा? अरे आप अभी भी आपने अभी जो रूफटॉप का बहुत अच्छा हुआ, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट कि हमें आपके महासोलर संगठन हुआ, हमारा वही इधर पूना वाला मासमा हुआ, तुम्हारा वही जो वहाँ हंगर स्ट्राइक हुआ, और आप लोगों ने बहुत उसमें किया। ये सब मिला के जो आपने MERC में प्रेजेंटेशन किया, MSCDCL में प्रेजेंटेशन किया, हम लोग भी अनऑफिशियली आपके साथ में ही थे, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, ये हमारा, क्योंकि मेरा का मेन मोटिव क्या है कि इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए।
तो ये इसके लिए हम लोगों ने आपके पीछे हम लोग थे, हम डायरेक्टली आगे नहीं आ सकते थे, फिर भी हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, हमने भी प्रेजेंटेशन किया, आप सबको मालूम है। ये तो मुझे यही बोलना है कि आप एक के पीछे मत भागो यार। इंडस्ट्री में अभी ये इतना मैंने पीछे सबको मेल दिया था कि हम लोग पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, तो कोई सजेशंस है, कोई पॉलिसी में कुछ नया डालना चाहिए क्या? किसी ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। ऐसा नहीं होना। आपको रूफटॉप का एक बिजनेस है, उसमें भी अच्छा पोटेंशियल है, मैं नहीं बोलता हूँ सबके लिए, और इजी बिजनेस है। इजी बिजनेस के पीछे जो आप लोग भागते हो, वो थोड़ा आपने सोचना चाहिए, उस पर थिंक करना चाहिए कि और क्या हुआ। आज कल परसों अमरावती में थोड़ा स्टॉर्म आया, 10-12 सिस्टम निकल के गए, रास्ते पे आ गए। सोलापुर में पिछले साल स्टॉर्म आया, 20-25 सिस्टम रास्ते पे आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्वालिटी के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्वालिटी दोगे तो आपकी विश्वासार्हता बढ़ेगी, विश्वासार्हता नहीं बढ़ेगी तो सोलर इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। देखो ये तो मैंने अभी प्रिपेयर इसमें बताया है कि ये आपके थोड़े से लैक्यूनास है, जिस पे आपने थोड़ा गौर करना चाहिए। क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉस्ट में भी मत कॉम्प्रोमाइज करो। देखो मैं सबको जाने, मैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, सीधी बात करता हूँ, गुस्सा मत होना किसी ने। भाई साहब ऐसा है कि हम लोगों ने यूआई निकाला, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कॉस्ट डाली 110 रुपीज पर किलो पर वॉट, और आपने कोट की 45 रुपए। सही है। हाँ, व्हाट इज दिस? कहाँ जा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? 45 रुपए में आपको पुरता है क्योंकि आप उसमें एडजस्टमेंट करते हो। मेरा सीधा आप पे ब्लेम है, यू आर डूइंग एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं तो आप करते हो। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन ओवर द पीरियड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू। देखो मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। अगर ऐसा करोगे तो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। आपको क्वालिटी में ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी दोगे तो कॉस्ट भी आपको मिलेगी। लेकिन पहली कॉस्ट आप अगर 40 रुपए, 45 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए करोगे, मैंने 30 रुपए से टेंडर दिया है, 30 रुपए से। ठीक है भाई, आपको आप क्वांटम में खरीदी करते हो, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए से मॉड्यूल मिलता है। लेकिन जो 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 16 रुपए से आपको मॉड्यूल मिलता है, उसको आपने कभी टेस्ट करने की देखिए, सोचिए, देखा है कभी? अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसका नाम मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब हम लोगों ने नाइस में टेस्टिंग के लिए भेजा तो क्या रिजल्ट आए, ये सोचो। लोगों को अगर आउटपुट मिला, कोई जब हम लोग MSCDCL को नाम रखते हैं कि अभी महाजन साहब ने बताया है कि लोग बोलते हैं कि हमारा रीडिंग बराबर नहीं हो रहा है, हमने लिया नहीं, हमारा गया नहीं। लेकिन देयर सम फैक्ट्स आर देयर। हम लोग जो क्वालिटी का मटेरियल देते हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हमने बहुत कर रखी है, जो क्वालिटी का मटेरियल हम देते हैं तो उसमें हमको आउटपुट तो उस क्वालिटी में मिलना नहीं है। और हर जगह रेडिएशन अलग है, आप पूरे हिंदुस्तान का रेट एक ही लगा रहे हो, कहाँ जाएंगे? तो आप लोग ये थोड़ा बैठ के गौर कीजिए इस पे, तो ही इंडस्ट्री का भला होगा। चलो सॉरी, अभी मैं अगले इस पे जाता हूँ। सर एक आपका क्वेश्चन कोई था इसमें कोई? हाँ सर, एक क्वेश्चन हाँ था बताइए बताइए बताइए। सर एक्चुअली क्या है सर कि ये तो आप लोग बेटा इतना सुंदर टेंडर डिजाइन करती है, वो आपका बोलना सही है कि लोग कम मार्जिन में टेंडर उठा रहे हैं, लेकिन सर इसका रीजन है कि सर कि आप और हम सभी लोग एक चीज पे फोकस करते हैं, L1 पे। तो क्या सर हम लोग को T1 पे फोकस नहीं करना चाहिए इसके साथ में? ना बिल्कुल। ये देखो ऐसा है कि अगर अगर देखो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होते हैं, ठीक है? आप जो GRA हमारा खरीदी का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके पूरे गाइडलाइंस होते हैं।
वो गाइडलाइंस के को छलांग के या उसको छोड़ के हम कहीं आगे नहीं जा सकते, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में या इंडिपेंडेंट सेक्टर में वो हो सकता है कि T1 के बजाय T3 कंसिडर करें, ठीक है, या मार्किंग सिस्टम कहीं हो तो उसको कंसिडर किया जाए, लेकिन हमारे भी हाथ बांधे होते हैं। अगर सर, तो आप आप देखो, लोग मैं कोशिश अभी करके तो मैं जस्ट मिनट देखो, अगर मैं टेंडर के हिसाब से जाऊं, मैं अभी इट इज माय फॉल्ट, मैं मेरा फॉल्ट बता रहा हूं आपको, ये मेरा फॉल्ट है, इसमें मैं भी कल्प्रिट हूं आपके जैसा ही। मैं मीन्स राइट माय स्टाफ, माय मेडा एंड गवर्नमेंट, हम भी कल्प्रिट है। अगर टेंडर के हिसाब से मैं जाके वहां इंस्पेक्शन करूं, मैंने जो मेरे क्लॉजेस है, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, मेरे स्पेसिफिकेशंस है, उसके हिसाब से अगर मैं वहां जाके इंस्पेक्शन करूं, तो साहब इसमें से मेड़ा में बहुत लोगों ने काम किया होगा और करने वाले भी होंगे, तो एक पैसे का भी पेमेंट नहीं निकलेगा, मैं चैलेंज बोलता हूँ। बिल्कुल लेकिन सर। हमें वो नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, लेकिन मारने की नौबत भी नहीं आनी देनी चाहिए। तो आप बिल्कुल लोगों ने वो समझ के मैक्स टू मैक्स अच्छा काम करना चाहिए। 100% तो हम बोलते नहीं, उसमें 10% टेंडर में भी हम लिखते हैं 10% प्लस माइनस, स्पेसिफिकेशन में भी होता है 10% प्लस माइनस। तो इतना तो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो हिसाब से आप नहीं जाना चाहिए। आपने क्वालिटी, अगर जब क्वालिटी दोगे तो कॉस्ट में आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकेंगे। बोलिए आगे, आपका कुछ क्वेश्चन था? वही सर, टेंडर्स अभी इतने निकलने वाले हैं, हम लोगों ने ये संगठन इसके लिए बनाया है कि हम लोग थोड़ा सा लोगों को क्वालिटी समझा पाए, ट्रेनिंग दे पाए क्वालिटी के लिए। और नहीं आप लोग जैसे हमारे पैनलिस्ट है ही सर, तो आपका गाइडेंस, सारंग सर का गाइडेंस हमेशा हमको लगेगा। और जो नए लोग, जो लोग अभी गवर्नमेंट का काम अभी तक किए नहीं है, तो उनको ये सारी चीजें समझाना भी सर, गाइडलाइन देना भी हमारा और आप लोग जैसे लोगों का ही काम होना चाहिए सर। तो आपने जो बोला सर, सही बात है कि आप इतना सुंदर टेंडर डिजाइन करते हैं, मैंने पूरा जाके खुद भी देखा है कि आप हमेशा टेंडर के पीछे ही परेशान रहते हैं। तो लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो ये चीजों को नहीं समझ रहे और सिर्फ टेंडर उठाने में विश्वास कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सोलर पे सबका विश्वास जा रहा है सर। हाँ, हम लोग भी उसके जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि आप थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना होने दें और हम लोग को भी और गाइड कीजिए सर। थैंक यू सर। नहीं, हम तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, अभी भी होने भी नहीं देते हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी ये तो हमारा भाषण बहुत हो गया, अभी हम जाते हैं। मैंने कोविड का बता दिया आपको कि कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा 5-6 महीने सबको तकलीफ होने वाली है, उस हिसाब से आपको भी तकलीफ होने वाली है, थोड़ा हर्डल्स, लेकिन ये हर्डल को हम एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे, इसको हम अपॉर्चुनिटी के तौर से लेंगे, इसको बराबर। हर्डल नहीं बोलेंगे। हम लोग हर्डल नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। तो सर, हम लोग अभी क्या है कि महाजन सारंग सर ने भी बताया कि हाइब्रिड पॉलिसी कर रहे हैं हम लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्योंकि मैं आई एम इन द हेड ऑफिस, कुछ चीजें फील्ड पे भी थोड़ी मालूम नहीं होती, क्योंकि रोज यहाँ नया नया डेवलपमेंट होता है। तो जब हमारा इंटरेक्शन होता है तब इन लोगों को नई चीजें मालूम होती है। लेकिन सारंग सर, हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी हाइब्रिड कर रहे हैं। हमारे पॉलिसी में भी हम लोग अभी पूरी जो हम गवर्नमेंट बिल्डिंग पे जो अपग्रेड सिस्टम बिठाते थे ना, उसको हमने अभी बंद कर दिया है। नेक्स्ट ईयर से वहां पर पूरी हाइब्रिड सिस्टम लगेगी एवरीवेयर। हम लोग ग्रिड कनेक्टेड में भी हाइब्रिड देने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों सब, अभी श्यामल, कितने कितने लोग ज्वाइन है हमारे इसमें? अभी कितने लोग ज्वाइन है? 220 लोग हैं। सर 221। अरे वेरी गुड, इंक्लूडिंग मी 221 ना? यस सर, इंक्लूडिंग ऑल। ओके ओके, तो अच्छा रिस्पांस है। सब लोगों को मेरी यही विनती है। मुझे कितने लोग पहचानते हैं सर आई कुछ डोंट और नो। क्वेश्चन है सर, कुछ और क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। सर सबका एक कुछ क्वेश्चन हमने मंगाए थे, उसमें एक हाँ छोटा सब्सिडी डिसबर्समेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है हाँ, पुरानी, बताइए। तो उसका क्या लेकिन हाल है? ऐसा है कि फिर आपको वही दिखता है, फिर आपको वही दिखता है।
मुझे ना तो कम से कम 42 सिस्टम की मैं सब्सिडी डिसबर्स करता हूँ, 42 स्कीम्स की, 32 स्कीम्स की, राइट। अभी सब्सिडी डिसबर्समेंट मुझे मालूम है आपको, आप किस चीज की सब्सिडी की बात कर रहे हो। हम तो सिर्फ रूफटॉप की सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बराबर रूफटॉप सब्सिडी जो है उसी की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में। बराबर बराबर सर। हाँ, तो देखो 55 मेगावाट 17-18 में हम लोगों ने अचीवमेंट किया था, और 18-19 में हम लोगों ने 50 मेगावाट अचीवमेंट किया था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17-18 में हमारे लिए 78 करोड़ रुपए दिया था, आउट ऑफ 101 करोड़ जो हमारा एलिजिबल सब्सिडी था। 101 करोड़ रुपए हमारी एलिजिबल सब्सिडी थी, उसमें से 76 आई थिंक सो 77 या 76 करोड़ एमएनआरई ने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। वो 100% 77 करोड़ हम लोग 17-18 की बात कर रहा हूं मैं, ये हमने डिसबर्स किया। 17-18 में 5,500 बेनिफिशियरी 5,700 बेनिफिशियरी मेरे पास थे, ठीक है। उसमें से 4,678 बेनिफिशियरी की सब्सिडी मैं अब तक डिसबर्स कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास तकरीबन 1,500 सब्सिडी 1,500 बेनिफिशियरी की सब्सिडी देना बाकी है 17-18 में। तो उसमें से बात ऐसी है कि इस 1,500 में से सिर्फ 350 प्रपोजल मेरे पास आज रेडी है जो मैं सब्सिडी डिसबर्स कर सकता हूँ। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ सब्सिडी दिखती है, प्रॉब्लम ऐसा है कि तकरीबन 1,300 बेनिफिशरीज के डिटेल्स मेरे पास आए नहीं है अभी तक। 1,300 ये मैंने किसको मांगना चाहिए, आप मेरे को सब्सिडी मांगते हो साहब, लेकिन ये आपका काम नहीं है कि आपने जितने बेनिफिशियरी दिए हैं ये है उनका पूरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे डीजीएम के पास जमा करें आप। मेरे डीजीएम बिल्कुल जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में उनके पास जमा होते हैं वो पूरे मुझे भेज देते हैं। उसके पीछे मुझे बहुत उसके बैक एंड है ना, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। आपका ऑनलाइन मुझे सोलर बिल में भरना पड़ता है, पूरा डेटा जब मैं आपका वहां जमा करूं तब एमएनआरई मुझे सब्सिडी रिलीज करती है, ऐसी सब्सिडी रिलीज नहीं करती जहाँ एमएनआरई देखती है कि हाँ आज मेरा का 3 महीने में ये 1,200 बेनिफिशियरी का 12 करोड़ 13 करोड़ रुपए का पीसीआर आ गया है, प्रोजेक्ट कमीशनिंग रिपोर्ट। वो पीसीआर जब एमएनआरई में जाता है उसके हिसाब से एमएनआरई मुझे सब्सिडी देती है। अब अभी मैंने यूसी देके फरवरी में 27 फरवरी को मैंने 76 करोड़ की यूसी दे दी है एमएनआरई को। एमएनआरई बोल रहा है कि आपके पीसीआर ही नहीं आ रहे हैं। ये जो है ना लॉकडाउन में मैंने 2,500 पीसीआर खुद भरे हैं। तो पूरी हर्डल है। एमएनआरई का पैसा जैसे ही आता है 17-18 का वो अभी हमने रिमाइंडर भी भेजा है। हमारे डीजी सर ने भी कल फोन किया था, अवजिंदर जो है डिप्टी सेक्रेटरी एमएनआरई में, उनको हमारे डीजी सर ने भी फोन किया था। आप चाहे तो आप कंफर्म कर सकते हैं उनसे बात करके, मैंने भी बात की है, हमारे डीजी सर ने भी बात की है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 15 मई तक सब्सिडी मेरे पास आएगी। लॉकडाउन जैसा ही खुलता है सब्सिडी 17-18 की कंप्लीट हो जाएगी। 18-19 में भी मेरे पास पैसे है, वो भी मेरा काम चल रहा है। और जून एंड तक आई थिंक सो पूरी 17-18 और 18-19 पूरी सब्सिडी डिसबर्स हो जाएगी। कंडीशन ऐसी है कि आपकी रिपोर्ट मेरे पास आ जाए और पीसीआर में उसमें भर दूं, ठीक है। कोई शंका है? नहीं सर, ग्रेट सर, आप लोग हमेशा ऐसे काम ग्रेट सर, बहुत अच्छा कमिटेड आपने डेडलाइन बताया। सब लोगों का यही मेजर क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच सर, इतना कमिटेड डेडलाइन के साथ बताने के लिए सर। ओके सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे कोविड के चक्कर में आउट ऑफ मतलब विदर्भ में आउट ऑफ नागपुर के कुछ पीसीआर बच गए। मैं समझा नहीं। विदर्भ रीजन में आउट ऑफ नागपुर जैसे अकोला, यवतमाल, अमरावती, ये सारे कुछ पीसीआर बचे हुए लोगों के, पीसीआर बचे हुए लास्ट सेक्शन के पीसीआर भरने के बचे। ओके
तो वो सब करेंगे क्या कोविड के बाद? है ना, क्या हुआ, देखो ऐसा है कि पीसीआर का भी प्रॉब्लम ऐसा है कि वो है ऑनलाइन सिस्टम। राइट सर। उसमें उसमें हर वक्त एमएनआरई से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उनका क्या है कि स्लॉट होता है, हर महीने का स्लॉट होता है, हर महीने में स्लॉट हो गए उनका कि कंप्लीट हो गया कि वो वेबसाइट बंद, उनका पीसीआर का जो पोर्टल है वो बंद हो जाता है। सही सर। मार्च 17-18 मार्च से लेकर आज तक मैं कम से कम 15 बार एक्सटेंशन मांग चुका हूं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ही नहीं आती है मेरे पास। एक्चुअली ऐसा है, आप लोग ये समझे नहीं बात। ये तो मेरी मेरी मतलब मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके फील्ड पे क्या प्रॉब्लम्स है। एक्चुअल सैंक्शन में ऐसा था एमएनआरई के कि जिस दिन सैंक्शन हो गया, हेलो हेलो सुन रहे हो? हाँ सर, ऑडिबल। जिस दिन सैंक्शन खत्म हो गया उस दिन जितने प्रोजेक्ट कमीशन थे वही प्रोजेक्ट्स हम लोग पीसीआर भरे और उतना ही मांगे। अगर वो हमने किया होता, प्रोजेक्ट सैंक्शन खत्म होने के बाद, मतलब कुछ फरवरी 27-28 फरवरी को कुछ सैंक्शन खत्म हुआ था, उस दिन अगर मैंने क्लोज कर दिया होता तो साहब 20 मेगावाट भी नहीं आता था। 20% लोगों को भी नहीं आता। 20 मेगावाट 20% भी नहीं आता था, लेकिन मुझे मालूम था। मैंने सैंक्शन दिया, कमिट किया, तो मैंने उसमें एमएनआरई को भी बताया कि ये हमारे प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। हमने सब बैकडेटेड किया है इंस्पेक्शन। मेरे डीजीएम को भी आपने, मेरे पूरे फील्ड स्टाफ को भी आपने एक्चुअल सराहना करना चाहिए उनकी कि यार उन्होंने आपका पूरा बैक डेटेड किया है। उनकी नौकरी पे से अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता तो नौकरी उनकी धोखे में आ सकती थी, लेकिन बैक डेटेड इंस्पेक्शन करके लिए उन्होंने इतना बड़ा आपके लिए सहूलियत किया है। अगर नहीं करते थे बैक डेटेड तो आपको सब्सिडी नहीं मिलती थी। किया है ना कि नहीं किया है? सर 100% किया है। और मतलब इसीलिए आप दोनों जन बोर्ड पे है हमारे साथ में, क्योंकि जैसे सारंग सर ने किया हमको मदद, वैसे ही आपने भी किया है। और इसी कारण हम लोगों ने पीसीआर भर पाए हैं, और मतलब बैकडेटेड करके भी आप लोगों ने सब एक्सेप्ट किया है। तो उसके लिए पूरी सोलर इंडस्ट्री आपकी थैंकफुल है, महाराष्ट्र की। लेकिन सर कैसा रहता है ना कि हर कोई ऑफिसर जो रहता है आप लोग जैसा नहीं रहता सपोर्टिव, तो कहीं कहीं इसका भी प्रॉब्लम हमको आया है। आउट ऑफ नागपुर हमारे पीसीआर जमा होने के बाद में भी मतलब वो अप्रूव नहीं हुए या लोड नहीं हुए, ऐसे भी कई सारे हुए सर। तो ऐसे कुछ केसेस सभी के रह गए थोड़े थोड़े। अरे वो तो लेके आओ ना मेरे पास बाय हैंड इधर पुणे में, मैं करवा के देता हूँ ना। हाँ सर, वही रिक्वेस्ट था, सबका ही रिक्वेस्ट था। हर मर्ज की सॉल्यूशन है अपने पास, लेकिन आप तो बताना तो चाहिए मुझे। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। ये सबका ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मतलब क्या है, सब्सिडी कस्टमर की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको लॉस है। तो इसमें हमारे साइड से अभी कोई मतलब कोई भी इंस्टॉलर ऐसा नहीं होगा विदर्भ में बचा हुआ जिसने पीसीआर नहीं सबमिट किया, लेकिन उसका अपलोड नहीं हुआ, कुछ कारण से नहीं हुआ। श्यामल जी जी सर। सुनो, अभी ये जो है ना हमारा रूफटॉप पुराना हम बंद कर देंगे। अभी बहुत हो गया, सबके पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा आगे पीछे होगा, या अभी लॉकडाउन, एमएनआरई से पैसा सब तरफ बजट कर्टेल हुआ है। एमएनआरई को तो सिर्फ 5% पैसे मिला है, 5% ओनली। राइट सर। तो ये हम पक्का आपको गारंटी देते हैं कि जितने लोगों को सैंक्शन दिया है, जितने लोगों ने पीसीआर अपडेट किया है, उन सबको हम लोग सब्सिडी देंगे। आपको थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा, राइट? नहीं सर, अभी हम लोग छोड़ो ये रूफटॉप, यार रूफटॉप में कोई पड़ा नहीं। इंडस्ट्री अभी जो है ना, वी आर कमिंग टू द वो जो है सेकंड ना, क्वेश्चन सर, वही सर टेंडर फ्रेमवर्क के बारे में आ रहे थे सर, कि हाँ, अभी जैसे सर टेंडर फ्रेमवर्क प्राइवेट जो काम है सर, अभी इस साल लगभग बंद रहेंगे। तो अभी सबका फोकस सर गवर्नमेंट पे ही रहेगा, और आप पे बहुत बड़ी नजर रहेगी सर। तो आपने एमएसएमई जो रजिस्टर्ड नए लोग हैं या नए प्लेयर्स है सोलर में, तो उनके लिए हम एमएसएमई के साथ में मिलके कुछ काम कर सकते हैं क्या? मेडा कुछ काम करेगी क्या उनके साथ में? जैसे ईएमडी का बेनिफिट जो एमएसएमई देती है कि में ईएमडी नहीं जमा करना पड़ता है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जिनके पास में है, तो ऐसा कुछ सर मेडा प्लान कर रही है क्या? हाँ, नहीं प्लान क्यों कर रहे हैं? हर टेंडर में होता है मेरे, हर हाँ, टेंडर में एमएसएमई को, हर टेंडर में होता है। हाँ सर। तो अभी नए जो प्लेयर्स है जिन्होंने अभी तक के उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको भी छोटे मोटे काम देके वो कब तक। देखो ऐसा है कि एमएसएमई को छूट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दैट इज ऑप्शनल, ठीक है ना? राइट सर।
लेकिन Right, sir. फिर भी हम लोग देते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर आप एक्सपीरियंस की बात करोगे या फाइनेंशियल की बात करोगे तो जी, sir. टेंडर फ्रेमवर्क में भी हम लोग के हाथ बांधे होते हैं। Right, sir. आउट ऑफ बॉक्स जाके हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? Right, sir. आउट ऑफ थोड़ा सा बॉक्स सर जाके आप हम लोग लोग थोड़ा सा सर आप लोग मतलब अगर सपोर्ट करेंगे, जैसे अभी एक सपोज सर एक 100 स्कूल का ये निकला है, टेंडर निकला भंडारा का 1 किलोवाट के। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। अब आपके लिए तो आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है सर कि अगर इस पे थोड़ा सा, जैसे अगर इसको अगर और थोड़े छोटे टेंडर में बांटे तो छोटे लोगों को काम मिले सर, हमारा यही एक्सपेक्टेशन है। ये हमने कब बोला छोटे लोग मत आना? अरे तो आपने, फिर मैं रूफटॉप पे आता हूँ साहब, कितने छोटे लोगों को खड़ा किया हम लोगों ने? बिल्कुल किया सर, हम लोग जैसे लोगों को बड़ा आपने ही बनाया है, तो हम लोग भी अरे एक टाइम छोटी। 1000 लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन दिया था, कुछ देखा था या किसी ने पूछना कि कुछ हर्डल किया? सारा फोन किया तो हमने, आपको भी मैंने तो ऑन फोन ही दिया था ना, एक सर दिन में दिया था आपने ना आपको रजिस्ट्रेशन। सर आपने कॉल करके दिया था सर, खुद कॉल करके बताया था। यस, यही बोल रहा सर कि दिस टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम योर साइड इज एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर आल्सो, दैट इज ओनली द आवर रिक्वेस्ट सर। हाँ साहब, मैं 3 साल हूँ अभी मेडा में, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं उसी तरह हेल्प करते रहूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा पॉलिसी की ओर जाते हैं। ओके सर, ठीक है आप सर। डरने की बात, आपकी कोई क्वेश्चंस बैलेंस है क्या कुछ? थोड़े से बैलेंस है, आप सर कंटिन्यू करिए ना सर, देख लेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रहा है, 20-25 मिनट बाकी है, तो थोड़ा पॉलिसी की ओर जाते हैं। राइट सर। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, एक चीज के लिए पीछे बहुत भागते हो, दूसरी चीज आप सोचते ही नहीं हो। रूफटॉप के पीछे भागे। देखो ऐसा है कि इतने एरा खोल दिए हम लोगों ने, इतने अपॉर्चुनिटीज आपके सामने। आपने अगर पिछले 2015-16 की मेरी अपग्रेड का पॉलिसी देखे होते, या ग्रिड कनेक्टेड की पॉलिसी अगर आपने देखी होती। हेलो हेलो, हाँ सर, सुन रहे हो क्या? ऑडिबल ऑडिबल है? सर। हाँ, तो इतनी अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन किसी ने उधर गौर नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो पॉलिसी में मैंने उस पॉलिसी में 2500 करोड़ रुपए का ऑप्शन दिया था, मतलब 2500 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 ईयर में 15 से लेकर 20 तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आप लोगों को देने वाली थी। कितना? 2500 करोड़ रुपए 5 साल में। ओके सर। कितना खर्चा कर पाया मालूम है आपको? हार्डली 700 करोड़ रुपए, हार्डली। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि आप लोगों ने उस पे गौर नहीं किया, आप लोगों ने उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। आप तो आपके पीछे भागे, उसके बाद में हमारा पंप आया, सब पंप के पीछे भागे। पॉलिसी कोई देखना नहीं सब। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पॉलिसी में देखो, जिस दिन आप लोग, आई डोंट नो, आप वाटर हीटर में काम करते हो या थर्मल में काम करते हो या नहीं हो, इसमें ये जो 220 लोग है, उसमें से कितने लोग वाटर थर्मल में है मालूम नहीं। लेकिन साहब, जिस दिन MNRE ने वाटर हीटर की सब्सिडी बंद कर दी, उसी दिन, उसी महीने में, सेम महीने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मेडा ने वाटर हीटर के लिए सब्सिडी चालू कर दी थी। किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है, किसी ने पॉलिसी देखी नहीं। हम लोगों ने वेबसाइट में, मैंने हर मीटिंग में ये बजा के बताया लोगों को कि भाई, अरे भाई वो छोड़ो ना, वो वाटर हीटर की MNRE ने बंद कर दी, मेडा ने चालू कर दी है ना। ठीक है, थोड़ा पूरे 100% नहीं दे रहे हैं हम लोग, लेकिन उसमें से कुछ जो आपके प्राइम बेनिफिशरीज है, उनको तो हम सब्सिडी दे रहे हैं, उनके लिए तो आप कर लीजिए। अब ऐसा हुआ कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए आए थे 18-19 में, मैं सिर्फ 2 करोड़ रुपए उसमें से खर्चा कर पाया, 8 करोड़ रुपए वापस चले गए। इस साल मुझे 7 करोड़ रुपए आए, आज तक मैं सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्चा कर पाया, 5 करोड़ फिर से वापस जाना है। आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं देख रहे हो कि सब्सिडी है? पॉलिसी पढ़ो, सब्सिडी समझ में आएगी। सेम थिंग थर्मल में मैंने
स्टीम कुकिंग में किया था। स्टीम कुकिंग में मैंने स्टीम कुकिंग या स्टीम जनरेशन, इसमें मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दी थी। हमने तो यहाँ तक बताया था कि भाई 30% MNRE से लो, 30% हम देंगे, 60% होगा, 40% बेनिफिशियरी शेयर रहेगा। कितना अट्रैक्टिव था। कितनी जगह आप स्टीम कुकिंग लगा सकते थे सब, वो भी 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए का मेरा बजट, 1 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाया मैं, 1 करोड़ भी नहीं। क्यों? तो वो पॉलिसी पे ध्यान दो आप। अभी मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा कि हाँ, दीजिए सर। नेक्स्ट ये कोविड के खत्म होते ही हम लोग अभी नया पॉलिसी ला रहे हैं, ग्रिड कनेक्टेड, अपग्रिड, सब Okay. दोनों मिला के हम लोग अराउंड 4.5-5 हजार करोड़ की पॉलिसी ला रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, 4-4.5 हजार करोड़ की। सब महाराष्ट्र में कितनी इंडस्ट्री है आपकी सोलर की? 500 पकड़ लो, 1000 पकड़ लो, 1000 लोग समझ लो, 1000 लोग डिवाइडेड बाय 4.5 हजार करोड़, कितना होगा 5 साल में? सब लोग तो फ्लाइट ले लेंगे, विमान ले लेंगे यार। आप लोग काम करोगे तो, हाँ रियली काम करोगे ना तो अंबानी जैसा खुद का फ्लाइट लेके घूमोगे। हाँ काम करो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप पॉलिसी पढ़ो। हम लोगों की जो पॉलिसी हम लोग लाते हैं यार, बहुत सोच के लाते हैं। लेकिन देखो मैंने अभी इसमें अपग्रेड में भी इतनी बड़ी पॉलिसी लाई, 1000 करोड़ की पॉलिसी अपग्रेड में है साहब। 1000 करोड़ अगर मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूँ, 1000 करोड़ अगर मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूँ, उसमें भी वो 700 करोड़ होगी, 800 करोड़ होगी, 1000 करोड़ होगी, अराउंड 700-800 1000 करोड़ समझ लो आप, क्योंकि अभी वो फाइनलाइज। सॉरी टू इंटरप्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली टाइम बोलो। बहुत कम रह गया है, तो नेक्स्ट वेबिनार में हम आपसे बाकी सुन लेंगे सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा एकदम ही कम टाइम रहा और इतना आपके पास बोलने को इतना है और हम लोग भी सुनने के लिए इतने इच्छुक हैं, लेकिन टाइम लिमिट है थोड़ा सा। तो जो भी होगा सर, अभी नेक्स्ट वेबिनार कंडक्ट करते हैं, तो हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं एक बार आके फिर लोगों को समझाइए। ठीक है, ठीक हमारे है, सिर्फ ठीक है, 8 मिनट बचे हुए सिर्फ है, तो बाकी जो ठीक है। हमारे को लोगों को स्पीकर्स को बोलना है, तो हम लोग सर कंटिन्यू करें सर। हाँ बिल्कुल करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द बोर्ड सर। प्लीज बी ऑन द बोर्ड सर, वी आर नॉट फिनिशिंग ऑन। ओके हाँ, thank you, Rode sir. ओके, थैंक यू। Now I request Mr. Shamal Chatterjee to, he is the secretary of Mahasolar Sangathan, who will guide us on to the future of Mahasolar Sangathan, how we are going to do in the future things, and he will say few things about the future roadmap. Shamal. Hello everyone. First of all, I would like to thank the most generous two people who came on board for us. मेडा के लिए अगर आप बात करेंगे रोडे सर और शारंग महाजन सर, तो ये दो ही लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी आधी रात को फोन किया तो ये सबके, जैसे अभी सर ने बोला, मदद करते खुद से चल गए। तो हम लोगों ने इसीलिए ये दो लोगों को ही अपने पास में बुलाया था कि ये सबकी मदद करते हैं। और हमको ये पता है कि सर ने जितना अच्छे से गाइड किया, शायद कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मेडा में सारंग सर और विकास सर से अच्छा गाइड हमको नहीं करता था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी वेबिनार में, आप लोगों को पर्सनली भी कभी भी कोई प्रॉब्लम रहे तो सर हर वैलिड क्वेश्चन का जवाब देते हैं इसमें, और वो खुद फॉलोअप लेते हैं। सारंग सर भी खुद फॉलोअप लेते हैं, रोडे सर भी खुद फॉलोअप लेते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम हम लोग एक बार सर के लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं सब लोग मिलके, और थैंक्स भी बोल सकते हैं। Now we'll continue with the next point. How can we fight after the pandemic ends? Suggestion by MSS. जैसे हमने बोला कि हम लोग अपने मेंबर्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अभी जैसे ये हम लोग हेलो, am I audible? Yes, go ahead. Yes, please go ahead. Hello. So how we Yes, can Shamal sir, please fight? go ahead. हाँ, how we can fight to sustain after the pandemic ends. तो ये सजेशंस कुछ MSS ने अपने मेंबर्स के लिए बनाए हैं।
तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे अभी हम लोगों ने ये वेबिनार अरेंज किया, एक तो सबके मन में यही डाउट था कि आगे क्या करना है। तो रोड़े सर, सारंग सर दोनों ने बताया हमको, टेक्निकली इनसे अच्छा आपको सोलर के बारे में कोई भी नहीं बता सकता, तो इसीलिए हमने इन दोनों को बुलाया था। तो आगे हमको क्या करना है, अभी जैसे रोड़े सर ने थर्मल के बारे में बताया, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, अनटच्ड फील्ड है अभी भी। तो आपको प्राइवेट से जरूर काम कम मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट में इतने काम है, वी शुड एक्सप्लोर दैट, and for that we are having this type of people who are always ready to help people like us. तो एक ये एमएसएस का बहुत बड़ा ये रीजन था कि ये वेबिनार अरेंज करना। इसके बाद जो हम लोग एक वेबिनार लेने जा रहे हैं वो रहेगा, उसमें भी रोड़े सर एंड सारंग सर विल बी इनवाइटेड। अभी जो भी वेबिनार्स रहेंगे, जब भी सर के फ्री टाइम्स रहेंगे तो हम दोनों को इनवाइट करेंगे हर वेबिनार में। तो इसमें एमएसएमई के डायरेक्टर पार्लेवार सर आने वाले हैं, जो आपको एमएसएमई के नए गाइडलाइंस बताएंगे कि एमएसएमई ने अभी नए लोगों के लिए या पोस्ट कोविड कितना फंड्स लाया है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। कल ही गडकरी साहब ने ये एक्सप्लोर भी किया है इस चीज को कि 50 करोड़ तक के आप आइडिया पोस्ट करो, 50 करोड़ तक के फंडिंग करेगी एमएसएमई। तो अब सोलर में और रिन्यूएबल एनर्जी में अभी आप आने का सही समय यही है पोस्ट कोविड, क्योंकि इंडिया में सारे कंपनीज का हम लोग देख रहे फ्यूचर। हर कंपनी जो चाइना छोड़ के आएगी तो नियरेस्ट कंट्री विल बी इंडिया। वी आर होपिंग दिस एंड एवरीवन इज होपिंग दिस, क्योंकि आज एक ऑथेंटिसिटी जो हमारे कल्चर में है, एथिकल हम लोग हैं, ये बाकी देश भी इस चीज को मानते हैं। और अभी सभी सभी चीजें ऐसी हो रही है कि हम लोगों ने मिलजुल के अभी एमएसएस फैमिली को चलाना है। और एमएसएस फैमिली में हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि लोग जुड़े, तो हम लोग इनको कैसे आगे काम कर सकते हैं। जैसे अभी रोडे सर ने बोला कि आप जिनके पीसीआर नहीं आए आप मेरे पास लेके आओ, तो ये संगठन बनने से, ये नहीं तो एक एक जन पॉसिबल नहीं था। सर ने भी अटेंड करना, और हमारे को भी इतना आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता है, क्योंकि हर कोई वो अप्रोच में नहीं काम कर रहा कि रोडे सर हर किसी को शायद पहचानते भी नहीं है। जो लोग नया काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा ये हो जाता है, टफ हो जाता है। अभी जैसे हम लोगों को काफी टाइम हो गया काम करते करते, तो हम लोग आपको गाइड कर पा रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग ने एक एमएसएमई के साथ मिलकर सोलर क्लस्टर बनाने का सोचा हुआ है, जो कि इंडिया का रोडे सर और सारंग सर के मदद से ये होगा जरूर। यहाँ पे इंडिया का पहला क्लस्टर नागपुर में बनने जा रहा है, सोलर क्लस्टर। दैट इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मेंबर्स, कि इसमें हम लोग एक टेस्टिंग लैब, जो अभी रोडे सर बोल रहे थे कि टेस्टिंग लैब नहीं है हमारे पास में, टेस्टिंग लैब है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मेंबर्स के लिए हम लोगों ने सेटअप करने का सोचा है। इसका परमिशन भी हमने एमएसएमई से लिया। एमएसएमई ने क्लस्टर के लिए ग्रांट 40 करोड़ ग्रांट करने का भी वादा किया है। तो ये हम लोग पोस्ट कोविड ये भी चालू कर रहे हैं, ताकि हमारे सारे मेंबर्स को एक काम मिले। और सारी चीजों का, अब जैसे टेंडर में कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, अगर आप टेस्टिंग लैब आपके पास खुद का हो तो आप कस्टमर को अपने हक से पैसा मांग सकोगे कि हमारा टेस्टिंग ऐसा है, और ये टेस्टिंग कोई करके देता नहीं है, ना कोई रिपोर्ट देता है इसकी। तो आपको जो भी मिलता है पैनल्स आप वो लगाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता। वही अगर आप 2 कस्टमर, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जैसे 2 कस्टमर के आपने लगाया, अगर वो 2 कस्टमर फेल हो जाते हैं, उनके आप पैनल लगाया हुआ जो आपका फेल हो जाता है, तो आगे आपके वो 2 कस्टमर जो है वो 4 कस्टमर नहीं देने वाले। वहीं अगर आप अच्छा पैनल लगाते हो, जैसे सर ने बोला, तो आपको आगे का बिजनेस भी मिलता है। इसके बाद में हम लोग फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोसेस भी उसी क्लस्टर में ला रहे हैं। उसी क्लस्टर में हम फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोसेस ला रहे हैं, जिसमें हम लोग सोलर आपको कैसे इंस्टॉल करना है, और सोलर के बारे में और इंटीग्रेशन और एक्सपर्ट लेक्चर्स वगैरह सारा कुछ परफॉर्म करके हम लोग इसका भी प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग सेंटर हम चालू करें। इसके बाद में हम लोग मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, और टेक्निकल ट्रेनिंग में और वो टफ कैसे हो, और स्टेबल कैसे हो, ये सारी चीजों का भी अरेंजमेंट एमएसएस कर रही है। और एक ऐसा लैब और ये सारी चीजें बना के, एक सोलर के लिए एक अच्छा माहौल बना के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मेंबर्स को कि आप सब लोग और लोगों को अपने साथ लाए, एक इंडस्ट्री को और स्ट्रांग बनाए, ताकि हमको ऐसे लोगों के गाइडेंस मिलते रहे और एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए। थैंक यू। So there is one last small presentation or speech by Advocate Aditya Singh. He will be joining us from Delhi, and I'll ask him to kindly spare 5 minutes on regarding to this legal aspect on this particular solar rooftop or solar industry. Aditya sir.
I think there is some problem with Aditya sir. Technical error is there in the system, so he'll not be joining us. Mr. Vipul Joshiyar is with us. I'll request Mr. Vipul Joshiyar to kindly speak for 2 minutes. Vipul sir. हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रोडे सर और थैंक यू महाजन सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। और रोडे सर एज यूजुअल बिल्कुल स्ट्रेट एंड ब्लंटली बताया उन्होंने कि हम लोग कहाँ पे एरर कर रहे हैं, सब्सिडी मांग के गलती कहीं हमारे से भी हो रही है जो उन्होंने हमें बताई। तो रोडे सर डेफिनेटली हम आपके इस सजेशन को आगे बढ़ाएंगे एंड अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जो जो नए नए स्कीम्स आएंगे उस बारे में वी विल ट्राई सी के पूरे इंडस्ट्री को उस बारे में पता चले और लोग भी उसके लिए अवेयर रहे कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से ग्रैब की जा सकती है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रिगार्डिंग रूफटॉप सोलर हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे सर कि जो सब्सिडी आप मतलब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा बट सब्सिडी का जो प्रोसेस है आप किसी तरह से मिनिस्टर सर को या बता के मेड़ा के पास ही रहने दीजिए, सो दैट कि ये हमने 3 या 4 साल से एक्सपीरियंस गैदर किया है मेड़ा ने और सब डेवलपर्स ने भी, और एक सिस्टम बैठी है। डिस्कॉम के पास ये उस तरह से चल नहीं सकेगी और हम देख रहे हैं कि काफी हम मतलब कुछ स्टेट हमारे ही आजू बाजू वाले 600 मेगावाट का टारगेट लेके फिर से दूसरा गवर्नमेंट के पास चले गए 600 मेगावाट का रेसिडेंशियल टारगेट लेके। तो उसमें ऐसा हमें फील होता है थोड़ा सा कि अपने स्टेट का कहीं थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो उस पे आप एज ए मेंटोर, ये पूरे इंडस्ट्री के एज ए मेंटोर आप हमारा कॉज लेके आप गवर्नमेंट से लड़िए कि ये किसी तरह से ये आगे बढ़े ये चीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Today, friends, this today we are closing this seminar now. We'll be again reaching you through this webinar because another 14 days lockdown is being extended. So let us utilize this time to enhance our knowledge and participate in some of the webinars which will be coming up. And definitely with your help, we'll try to gain all knowledges on this during this period. And we request you to kindly fill up our membership form and send us the feedback about this seminar. So thank you very much.